Madam. Who is the madam here? Madam is the 8 years old girl. Her name is Vali. In short, she is going to be called up Vali. The people where she lives, the people tell her Vali. Basically, this story is in Tamil, but it has been translated into English. The writer itself is the Vali of this chapter. Once, when she was alone, she don't have any playmates. Here playmates, you will see here the playmates means friend. There were no any playmates in her street where she was residing. That's why she was not playing. So the only option she had, that was standing on the doorway and watching the bus passenger that was going and coming on the street. For a long time, she was doing the same job. Since she don't have any option, so that's why every day she was standing on the door and looking to the passenger. In this way, she gathered a lots of information about the bus and information. Information means from where to where the bus runs, where the people were going, the distance between the village and city, what it was, and what the fare amount she will have for the riding. Since she was looking it for a long time, so one day she thought to ride the bus. Ride here means bus में सवारी करना. I was riding the bicycle, मतलब मैं साइकिल चला रहा था. तो a strong desire came into mind to go on the bus, traveling. So for that there was a need of money. Since she was very young, 8 years girl, so she don't have any courage to go and ask for mama for a money. That's why whatever the pocket money she was having, she was collecting it. And from where she was collecting it? Since there was a fair in the village, long back, you know, long back, many of the village, even today many of the villages where they are every year there is a fair, held the fair. आज भी बहुत ऐसे गांव हैं जहाँ पर गांव में मेला लगता है. वो बच्ची क्या करती थी, जो गांव में मेले लगते थे उससे जो पैसे मिलते थे उन्हें, उस पैसे को वो सेविंग करती थी. सेविंग करने के बाद उसके पास बहुत सारे पैसे हो गए. सेविंग इसलिए करती थी कि उसे स्ट्रॉन्ग डिजायर था कि हमें बस की सवारी करनी है. तो जो भी अमाउंट उसके पास मिलता था, क्या करती थी, वो सारे पैसे को बचा करके रखती थी. फाइनली शी कलेक्टेड 60 पैसे, 60 coin. One day a gentleman and one neighbor were talking about the bus and riding. She just heard everything whatever they are talking, and she collected lot of information कि what the amount I have to give for the riding. Finally she got in going 30 coin, in coming back 30 coin. In this way the whole amount it was taking 60 coins in coming and going back. Finally she decided, since she had money in the pocket, and she became ready to go on a ride. Just one day, since she had a money now, she was ready fully to go. She came on the corner and gave a sound, please stop, stop and stop. One more thing here, since she was a girl, so she was hiding everything from the mama कि she was going in the town. If she would tell to mama कि I would like to go in the city, maybe the mama ignored, stopped her to go there. That's why she made a good plan. Every day it was a routine of her mama. On the daytime she was going to bed for 3 hours. I mean she was taking a rest. So that time was very good for her, and she selected that time when her mama is going to the bed for sleeping. दिन में
वो जान चुकी थी कि मम्मा का मेरा रूटीन है वह 3 घंटा सोती है। काम से छुटकारा पा करके मेरी मम्मी जो है 3 घंटे तक सोती है। वो टाइम को सिलेक्ट किया कि उसी टाइम में हमें जाना चाहिए, जिससे कि मैं यात्रा करके आ भी जाऊंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। फाइनली सारा प्लान बहुत अच्छी तरह से उसे बन गया। एक दिन वह बस स्टॉपेज नियर जो उसके घर के पास जो बस स्टॉपेज होता है वहाँ जाती है और पीछे से कंडक्टर को हाथ देती है। कंडक्टर जो है सुनता है आवाज़ और बोलता है यस यस जल्दी बुलाओ जल्दी बुलाओ। बोला कोई नहीं है, किससे बुलाने की बात कर रही हैं? बुलाओ, किसके लिए बस रुकवा रही हो? तो वो बच्ची बोलती है मैं जाऊंगी। वो कंडक्टर बोला तुम जाओगे? इतनी छोटी बच्ची 8 साल की बच्ची, तुम जाओगे? यस आई वांट टू राइड अ बस। इस प्रकार कंडक्टर जो है उसे सपोर्ट करने लगता है कि चलो बस में। जैसे ही कंडक्टर हाथ पकड़ता है वो जो है मना कर देती है, प्लीज डोंट टच मी, आई एम कैपेबल टू गो इनसाइड द बस, आई कैन राइड। मतलब मैं बस में चढ़ सकती हूँ, गेट ऑन इनटू बस। इस प्रकार वह बिना सपोर्ट के कंडक्टर के वो बस में चढ़ जाती है उतनी छोटी बच्ची, लेकिन उसे टच करने नहीं देती है। इस प्रकार बच्ची जो है वो जाती है, कंडक्टर इशारा करता है कि देखो वो सीट खाली है वहाँ पर बैठ जाओ। जा कर के बच्ची जो है बैठ जाती है बस में, और बैठने के बाद जो नज़ारा है आसपास का जो सीन है वो सब जो है वो सीन देखने लगती है। बहुत मज़ा आता है क्योंकि वो इसी देखने के लिए तो आई थी। वह दुनिया को देखना चाहती थी, वह जानना चाहती थी कि लोग कहाँ जाते हैं और रास्ते में क्या क्या होते हैं। इस प्रकार उससे बहुत मज़ा आ रहा था। अचानक रास्ते में जैसे जाते जाते एक गाय बीच सड़क पर आ गई। यह देख करके जो कंडक्टर है वो अचानक जो है सीटी मारता है और गाड़ी धीरे हो जाती है। इसके बाद जो है हटाने का कोशिश करता है गाय को, तो वो जो है हट नहीं पाती है। ऐसे पता है जानवर तो जानवर होते हैं, इतना आसानी से तो हटते नहीं कि आपने कहा हटो हटो तो वो हट जाएगी, वैसी बात नहीं है। इस प्रकार क्या हुआ कि वो जो बस ड्राइवर है वो क्या है पों पों अपना सीटी बजाता है, मतलब ब्लो करता है, और वो गाय जो है सुन करके वो और बिदकने लगती है। उसकी पूँछ जो है पीछे खड़ा हो जाता है और एक पूँछ खड़ा होता है और रोड पर जो है वो दौड़ने लगती है। यह देख करके बलि इतना खुश होती है, इतना खुश होती है कि आज तक ऐसा नज़ारा बलि कभी देखी नहीं थी। खूब मज़ा आता है उसे, वो गाय को पूँछ ऊपर करके भागते हुए देखकर खूब खुश होती है, आनंद से विभोर हो जाती है। उसके बाद जो है थोड़ा आगे बढ़ती है तो वो जो है जो खिड़की है, खिड़की के माध्यम से वो देखना चाहती है बाहर का सीन, लेकिन उसकी हाइट जो है बहुत कम है, तो जो पास का सीन है वो देख नहीं पाती है। तो क्या करती है वो सीट पर खड़ा हो जाती है। खड़ा होती है तो पीछे वाला पैसेंजर बोलता है बैठो बैठो, तो वो उसे गुर्रा कर देखती है, बैठती हूँ अभी। सारे पैसेंजर हंसने लगते हैं, कंडक्टर भी हंसने लगता है और बलि भी हंसने लगती है उसी में, खूब ठठाठा के। चूँकि वो बच्ची थी, आर्टलेस थी, बिल्कुल जो है निर्दोष बच्ची थी, उसके पास तो कोई छल कपट था नहीं, खूब हंसती है वो भी। इस प्रकार फाइनली जो है गाड़ी पहुंचती है शहर में। जब जैसे ही गाड़ी शहर में पहुंचती है, डेस्टिनेशन आ जाता है, लोग जो जो जिस बिज़नेस पर्पज़ से गए थे वो सबको जो है अपने अपने बिजनेस पर्पज़ से गाड़ी से उतर के बिजनेस में चले जाते हैं। बलि वहीं के वहीं बैठी हुई है। कंडक्टर ने कहा व्हाट इज रॉन्ग विद यू, क्या बात है, कोई बात है क्या? बोले नहीं कोई बात नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ कहती है। तो मैडम आपने, हाँ उसे मैडम कह के बुलाता है बच्ची को। जब मैडम कहता है तो बच्ची बोलती है खबरदार मैं मैडम नहीं हूँ, मुझे मैडम मत बोलो। अच्छा हाँ मैडम। तो जो है कंडक्टर जो है बहुत फनी होता है, वो बार बार मैडम कह के बुलाता है उसे, उसको भी मज़ा आता है और सभी जो पैसेंजर है वो खूब हंसते हैं, गुदगुदी होती है आपस में। तो क्या हुआ कि जब सारे पैसेंजर उतर गए तो बोलता है ड्राइवर की, कंडक्टर बोलता है कि आप भी चलो, आपने 30 पैसा दिया था, मैंने 30 पैसा जितना आपने दिया था उतना का मैंने यात्रा करा दिया। बोला कोई बात नहीं, ये 30 पैसे और लो, मैं इसी बस में फिर वापस जाऊंगी। बोला क्या बात है, आपको कोई काम नहीं है? नहीं मुझे कोई काम नहीं है,
मैं इसीलिए आई थी बस की सवारी करने के लिए। तो बोलती ठीक है, बस तो खुलेगी थोड़ी देर के बाद, क्योंकि बस का टाइमिंग होता है, आपको पता ही है, गांव के रहने वाले सही बच्चे हैं। तो जो बस स्टॉपेज होता है उसका टाइमिंग होता है 15 मिनट 20 मिनट के बाद फिर वापस जाएगी जब पैसेंजर आ जाएंगे। बोला कि ठीक है, जब तक पैसेंजर नहीं आते हैं, आपका टिकट पहले से फिक्स है, आपने पैसे दे दिए, आप कुछ बैठ के गाड़ी से नीचे उतर के कुछ फ्रेश हो लो। फ्रेश मतलब कुछ ठंडा वंडा या कुछ लेना है, मिठाई उठाई कुछ खा लो। बोले नहीं, मुझे नीचे नहीं जाना है। तो बोलता है कोई बात नहीं, मैं आपको ला के दे देता हूँ। बोला नहीं नहीं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। बोला कोई बात नहीं, पैसे की बात नहीं है, मैं तुम्हें ट्रीट देता हूँ, तुम्हें पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। बोलते नहीं, मैं नहीं लूँगी। फाइनली जो है वो लड़की नहीं लेती है, वो ट्रीट देना चाहता है। कंडक्टर बोलता है मैं कोल्ड ड्रिंक ला करके आपको दे देता हूँ, लेकिन वो जो लेती नहीं है। इससे पता चलता है कि वो लड़की जो है वो टेम्पटेशन उसके पास नहीं है, ग्रीडीनेस नहीं है, वो लालची नहीं है। वरना आप देखेंगे उतनी छोटी बच्ची है, कोई बोले ना बोले तब भी बच्ची बोलने लगती है अंकल कोई दिला दो ना। और वो जो है कंडक्टर जो है वो दे रहा है ट्रीट, फिर भी बच्ची बोल रही है कि नहीं। और हमारे आपके घर में जब आ जाते हैं अंकल आंटी, और हम क्या कर लेते हैं, पीछे में पड़ जाते हैं, आंटी ये दिलवा दो ना, ये वाला थोड़ा सा दिलवा दो ना। हैं, ये देखो ग्रीडनेस से टेम्पटेशन, मांगते हैं और उसको दिया जा रहा है, फिर भी वो लेती नहीं है। इस बात से पता चलता है कि वो जो गर्ल है कितनी ऑनेस्ट है। इसके बाद जो है सारे सवारी जो है आ जाते हैं अपने अपने बिजनेस पर्पज़ से। फिर जो है उतना ही कम सवारी जितना इस समय जा रहे थे, उतने नंबर ऑफ लेस जो है पैसेंजर हैं। फिर यात्रा शुरू होती है। जब आते आते इस बार क्या होता है कि जैसे चूँकि सेम गाड़ी था, सेम बस था और सेम रास्ते थे, अचानक जब बस आती है तो एक जानवर जो है रोड के बीच में सोई हुई है। आके ड्राइवर वहीं पर गाड़ी रोक देता है। बली जो है जानकारी लेना चाहती है कि क्या बात है, तो जो है कंडक्टर से पूछती है क्या बात है, ये जो है जानवर सोई क्यों है। तो कंडक्टर बताता है कि सोई नहीं है, ये सदा के लिए सो गई है। बोला क्या हुआ, तो मर गई है। तो बली के मन में आता है कि जो गाय जब रास्ते में जाते समय मिली थी, कहीं वही वाला गाय तो नहीं है। वो कंडक्टर से फिर बातचीत करती है, बोलती है कि जो हम कल देखे थे गाय, वही गाय है क्या। तो कंडक्टर बताता है कि हाँ, वो सेम जो काऊ मिली थी, आज वही गाय मरी पड़ी है। यह सुन करके बलि के मन में डेथ और बर्थ के बीच के खाई जो है चला आता है। सोचने पर विवश हो जाती है कि मनुष्य की ज़िंदगी, जानवरों की ज़िंदगी क्या है। अभी तुरंत आधा घंटा पहले यह जो है गाय कितना खुशहाल थी, कितना खुश नज़र आ रही थी, कितना चार्मिंग फेसेस था, और आज यह सो गई। उसे देखने वाला कोई नहीं है। और कल तक जो ये घूमती थी तो कितना अच्छा लगती थी। मनुष्य की ज़िंदगी क्या है, कुछ नहीं है। एक पल में क्या से क्या हो जाता है। ये सारी बातें जो है डेथ और बर्थ की जो बातें हैं उसके मन में चलने लगता है कि क्या ये ज़िंदगी है। एक मनुष्य जब जीवित रहता है उसके चेहरे पर कितना जो है चार्मिंग होता है, कितनी इच्छाएं होती हैं, कितनी उसकी कल्पना होती है, और पल भर में उसके सारे सपने, सारे जो है इच्छाएं वो चकनाचूर हो जाती है। बहुत सदमा लगता है और बलि बहुत उदास हो जाती है। जितना खुश वो जाते समय थी, जो खिड़कियों में जो नज़ारा देख रही थी, बलि आज बहुत उदास है, वो कुछ नहीं देख रही है। जब से सुना हो कि गाय मर गई, वो चुपचाप अपने सीट पर बैठ गई। और इस प्रकार निर्धारित समय पर बस जो है वापस जाती है। बलि जो है उतर के चुपके अपने घर में जाती है। जब जाती है तो बगल की जो आंटी है एक, उसके घर में जो है आकर के उसकी माँ से बातचीत कर रही होती है। तो माँ उधर बिजी है। अचानक बच्ची जो है बस से उतर के और घर में इन कर जाती है। जब इन करती है तो चाची जो है वो देख लेती है और वो पूछती है कहाँ थी, तब से मैं आई हूँ। वो यहीं पास में थी। वो कह करके वो भी ध्यान नहीं देती है, हैं, और वो जो है इन कर जाती है। फिर जो है बोलती है बलि कि ये मेरी चाची है ना, वो चैटर बॉक्स है। चैटर बॉक्स क्योंकि जब घर में इन कर जाती है तो किसी को बोलने नहीं देती है, लगातार बोलती है। और उसका मैंने फ़ायदा उठाया कि वो लगातार मेरी मम्मी से बातचीत करते रह गई और मैं जो है घर में इन कर गई।
तो इस कहानी में लेखक जो है यह दिखाने का कोशिश किया है कि एक तो पहले ऑनेस्टी की बात हो रही है कि जो गर्ल है इतने कम एज की होते हुए भी उसमें कितनी जो है मैच्योर जो है वो हो गई थी, ऑनेस्ट थी और अपने स्टैंड पर कायम थी। जब जब जो है कंडक्टर उससे छूने का प्रयास करता था वो जो है हमेशा उसे डांटती रहती थी, भले वो मजाक ही हो क्यों नहीं, लेकिन वो जो है दूर से उसे इशारा करती थी। जैसा कि चढ़ते समय कंडक्टर ने चाहा कि हम उसे हाथ पकड़ के चढ़ा दें तो बच्ची ने कहा नहीं, आई एम कैपेबल, आई कैन गो इनटू द बस। तो एक ये दिखाता है कि ईमानदार थी, कैपेबल थी, मैच्योरिटी था उसके पास। दूसरी बात कि यह जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब किस पल प्राण छूट जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मन में जो कल्पना है, मन में जो आप सोच के रखे हैं उसे तुरंत पूरा करें। कोशिश करें कि कल की बदौलत हम टालें इसको नहीं। यदि आपने सोचा है कि हमें करना है तो आप आज ही लग जाइए उस काम को करने में, जिससे कि समय रहते हम काम को कर सके। जैसा कि देखा आपने, इतना खुशहाल ज़िंदगी था वो मवेशी का और पल भर में वह कैसे स्वर्ग सिधार गई। तो ये कहना चाहते हैं राइटर इस कहानी के माध्यम से कि कल के सहारे कोई काम को मत छोड़िए, आप अपना काम पूरा कर लीजिए। क्या भरोसा ज़िंदगी का कि कब पल जो है ये प्राण चला जाए। सो इट वाज द समरी ऑफ द स्टोरी। नाउ विल सी इन डिटेल व्हेन विल सी द बुक्स। सो लेट अस सी द बुक्स। आई वुड लाइक टू गो थ्रू द पेजेज, राइट? यस, yes, my dear students, let's see. Part 1. There was a girl named Balimani who was called Vali for short. In short, she was called Vali, but her full name was Balimai. Valimai. Valimai was her full name, but in short, she was known as a Vali. She was 8 years old and very curious about things. Curious means excited to know. Since her age was 8, even then she was very excited to know about the things. Her favorite pastime was standing in the front doorway at her house, watching what was happening in the street outside. Here, the writer have tried to show how she was passing her time. She was passing her time by standing on the doorway and looking into the street. It was her good pastime. Why she was passing the time like this? Let us see the next line. There were no playmates of her own age on her street. As I told you, playmates means friend. There were no playmates. Written here. Since उसके कोई दोस्त नहीं थे, that's why she was standing on the door and looking into the street. No option she had. उसके कोई दोस्त नहीं थे, बेचारी कहाँ खेलती, उसके गली में दोस्त नहीं थे, दूर लोग थे, बट वो गर्ल को जाना दूर तो अच्छा नहीं होता है, पहले से भी चला आ रहा है, आज भी चलता है। इसलिए वो क्या करती है कि अपने चुपचाप दरवाजे पर खड़ा होकर के और वो जो पैसेंजर आते हैं, बस आते हैं, उसे देखती रहती है। क्यों? बिकॉज शी डोंट हैव एनी प्लेमेट। प्लेमेट मीन्स प्लेमेट्स मीन्स प्लेमेट्स फ्रेंड। प्लेमेट्स मीन्स फ्रेंड। शी डोंट हैव एनी प्लेमेट्स, दैट्स वाई शी वाज स्टैंडिंग देयर एंड पासिंग द टाइम। कोई ऑप्शन नहीं थे ना, कैसे टाइम पास करती, वो चुपचाप खड़ी हो जाती है। ओके, या एज ऑन हर एज एंड दिस वाज अबाउट ऑल शी हैड टू डू, बट फॉर बली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वाज एवरी bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played. Like the other children, those who were playing in the ground, they were very enjoyable. The same here, by standing on the door, she was very happy. She was not upset. Since she don't have any friend, even then she was not feeling any boring. She was happy because she was looking at the bus and passenger. Like the other children, she was not playing. Other children were playing in the ground. She was looking at them,
but she was not playing because in her own street there were no any friend like her. चूँकि उनके गलियों में कोई दोस्त नहीं थे, तो that's why what she was doing? She was standing on the doorway and looking to the bus. Watching the street gave her many new unusual experiences. In this way, she collected a lot of experiences. Now turn the page. The most fascinating things of all was the bus that travelled between her village and the nearest town. The most fascinating means attractive. Fascinating means attractive. It was a very beautiful scene when the bus was going, passing. What fascinating? Fascinating means attracting. Things of all was the bus that travelled between her village and the nearest town. It passed through her street each hour, once going to town and once coming back. Means on after every hour the bus was going and coming. Each hour, एक घंटे पर बस निकलते थे, तो बस की कोई प्रॉब्लम नहीं थी वहाँ, प्रत्येक घंटे पर बस पार होती रहती थी. क्लियर? यस. Each time with a new set of a town and once coming back, the sight of the bus filled. Each time with a new set of passengers was a source of unending joy for Belly. The joy was endless. Means lots of joy, which are not going to be over, because every hour the bus was going and coming back. So her joy was not going to be over. उसकी खुशी समाप्त होने वाली नहीं थी, क्योंकि प्रत्येक घंटे जो है बस वहाँ से आती और जाती थी, तो खुशी हमेशा उसकी बरकरार रहती थी. Yes, that's why her joy was very endless, which is not going to be end, because continuously the bus was going and coming back. Day after day she watched the bus, and gradually a tiny wish crept into her head and grew there. She wanted to ride on that bus, even it just once. Means only once she wanted to ride in the bus, since she was looking it for a long time. So once she wanted to ride into the bus. एक बार केवल बस की सवारी करना चाहती थी, बार बार नहीं, केवल एक बार. once she wanted to ride into bus. This wish became stronger and stronger until it was an overwhelming desire. Wally would stare wistfully at the people who got on off the bus when it stopped at the street corner. Means whenever the bus was standing on the corner, few passengers were coming and few were going inside, getting on and getting off. कुछ पैसेंजर चढ़ रहे थे, कुछ पैसेंजर जा रहे थे. ये जो है हमेशा खड़ा होकर के अपने घर के कोने वाले पर, वो हमेशा कॉर्नर पर जो है वो देख. Bali would stare wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. Their faces would kindle in her longings. Kindle means set alight, means fire, मतलब shining. Those who were going and coming in the bus, their faces were shining. उनके चेहरे पर एक शाइनिंग थी जो बस से उतरते और चढ़ते थे. उसे समझ में नहीं आ रहा था बली को क्या इन लोगों को मिल जाता है, इतने खुश कैसे रहते हैं. इसलिए उसकी इच्छा हुई बस में सवारी करने का, क्योंकि उसे खुशी मिलती थी देखकर लोगों को. अब मान लो आपके आप पड़ोस में सब लोग खुश हो, तो आपको जानने का एक्साइटमेंट होगा ना कि बंदा खुश क्यों है, क्या बात है, हमेशा हंसते रहता है. अब कोई रोता है तो पूछेगा हमेशा क्या बात है, हमेशा रोता ही रहता है जी. हैं? तो लोग क्या काफ़ी खुश थे जो बस में आते थे या बस में जाते थे. इसलिए उसको दृढ़ संकल्प हो गया कि अब हमें बस में सवारी करनी चाहिए. Corner. Their faces would kindle in her longings, dreams and hopes. If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, Wali would be too jealous to listen and would shout. Once what happened, one of her friends
started to explain about the bus riding. एक बार उसके कोई फ्रेंड है बली का, वो बस की यात्रा के बारे में वो वर्णन कर रही है। वह हैप्पी है लेकिन काफ़ी जेलस कर रही है। बली को जेलस आ रहा है। क्यों जेलस आ रहा है? क्योंकि मैं यहीं की खड़ी हूँ और ये बस का यात्रा भी कर ली। तो उसे जो है उसकी बातों को सुन नहीं रही है, सुन रही है बट सुन नहीं रही है, मतलब वो जेलस है। वो चाहती है कि मैं भी, बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है अपने जेलसी को। जैसे कोई बच्चा फर्स्ट आता है आपका फ्रेंड, तो क्या होता है बेसिकली, हम सामने से तो हंसते हैं लेकिन मन में चलते रहता है, इसका भी फेल हो जाता तो अच्छा होता है, पता नहीं कैसे नंबर ला दिया इतना। मतलब मन में ये क्या है, जेलस है ना। हाँ, अच्छा होता है इसका पेपर छूट जाता है वो पॉइंट। तो तो क्या हुआ यहाँ, बली जो है एक उसके फ्रेंड उसको सुना रहे हैं तीर्थ यात्रा के बारे में और वो उसको जेलस हो रहा है। वो सुनना नहीं चाह रही है, इग्नोर कर रही है, बस केवल हाँ 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 या सामने से वो बोल रही है, बट अंदर में क्या है, वो जेलस करती हैं। यस, हर फ्रेंड really understood the meaning of the word, but they used it often as a slang expression of disapproval. But what it was slang expression, मतलब she was not happy. By looking her face, it's very clear that कि बली was doing jealousy to her friend. By expression of the face, वो फेस का ऐसा एक्सप्रेशन हो गया जिससे उसके फ्रेंड को पता चल गया कि यह जो है ना मुझसे जेलस कर रही है, हैप्पी नहीं है सुन के ये न्यूज। क्योंकि फेस इज द इंडेक्स ऑफ आवर बॉडी। हमारा चेहरा क्या है, पूरे बॉडी का क्या होता है, इंडेक्स होता है। हम छिपा नहीं सकते हैं, यहाँ से दिखाई पड़ जाता है कौन खुश है कौन डिसअपॉइंटेड है, राइट। ये ऐसा चीज़ है, तो उसे पता चल जाता है कि यह मुझसे क्या है, जेलस करती है। Over many days and months, Bali listened carefully to conversation between her neighbors and people who regularly use the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. Generally, what is happening? Many of the neighbors and few people were talking about the bus riding. Every day, Bali was listening very carefully, and in this way, she collected a lot of information. From where she got information? By the people. Though who were the neighbor, you found how, Sharma ji, how she collected information? Do you know na? How she collected information? By neighbor. Many of the neighbor, though who were going and coming back, they were talking about the riding. So in this way, she collected the information कि how much distance are the city from the village and how much amount is going to be. पैसे कितने लग रहे हैं, डिस्टेंस कितना है शहर से गांव का, ये सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास मिल गया। इन दिस वे शी न्यू दैट्स इट विल टेक 60 पैसे 60 कॉइन इन कमिंग एंड गोइंग बैक. So you got from where she collected the information about it? Yes. Good. And would shout. She picked up various small details about her journey. The town was 6 miles from her village. The fare was 30 paise one way. One way 30 paise. So two way 60 paise. Obviously, in this way she collected information that I have to carry at least 60 paise in my pocket to go and come back. Yeah. Paise one way, which is almost the fare was nothing at all. She heard one well-dressed man say, but to Bali, who scarcely saw that much money from one month to the next, it seemed a fortune. The trip to the town took 45 minutes, and it was consuming the time 45 minutes. But the amount was very short. But for Bali, this amount was very heavy. This amount was very less. 30 coin, 30 paise were very less for the city for a journey. But for Bali, it was heavy amount. Why? Because she was a little girl. She don't have much money. So that's why she was a little bit worried about it. So now let us see from where she have collected the money.
क्योंकि पैसे तो उसके पास नहीं थे, दैट्स वाई जो है वो क्या किए, उनके गांव में मेले लगते थे और उस मेले में पॉकेट मनी मिलते थे, उसी पॉकेट मनी को सेव कर